مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، جو مہینہ بڑا ہی محترم، عزت والا، مقدس مہینہ ہے۔ ویسے تو میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ حرمت اور عظمت کا حامل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی زمانے، دن یا مہینے کی عظمت اور حرمت ہونے کا اصل جو سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور انوار کا اس مہینے میں، اس زمانے میں، اس دن میں ظاہر ہونا ہے۔ لیکن اگر محرم الحرام کی بات کی جائے تو میرے دوستو، یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو کتاب و سنت کے اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے بڑا شرف حاصل ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کو اسلام کے بعد نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی محترم اور مقدس سمجھا جاتا تھا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی جب یہ مہینہ آتا تو لوگ جو ہیں تمام قسم کے جنگ و قتال اور لڑائی جھگڑا چھوڑ کر کے اور ظلم و زیادتی سے دور ہو کر کے، ہر طرح کی بری بات سے بچتے ہوئے اس مہینے کو گزارا کرتے تھے، اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے، اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد اس مہینے کی عزت کو، ادب کو، احترام کو باقی رکھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کی سورہ توبہ میں صاف طور پر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس دن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد جو ہے 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ تو اس بات کی وضاحت میرے اور آپ کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرما دی ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اپنی ہیئت پر واپس آ گیا ہے، جس پر یہ اس دن تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی مہینے 12 ہیں، جن میں سے حرمت والے 4 مہینے ہیں جو بڑے ہی محترم اور ادب والے مہینے ہیں۔ 3 مسلسل ہیں، یعنی ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ جو رجب ہے، جو جمادی الآخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اللہ کے رسول کی اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ
एक तो महीनों की तादाद जो है 12 है, और साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है कि इन महीनों के अंदर 4 महीने जो हैं वो हुर्मत वाले हैं, एहतराम वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये भी मालूम हो जाता है कि इन महीनों को तरतीब देने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई शख्स नहीं है, कोई फ़र्द बशर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन महीनों को बनाया है और इनकी तादाद जो है 12 रखी है, जिनमें से 4 महीने अल्लाह ने हुर्मत वाले बनाए हैं। जिन 4 महीनों में से एक महीना मुहर्रमुल हराम का, और मुहर्रमुल हराम का महीना ऐसा महीना है जिसको तारीख़ी एतबार से भी बड़ी अहमियत का जो है शर्फ हासिल है, जिसमें ऐसे अजीम शान वाक़यात जो हैं पेश आए हैं जो दीगर महीनों के अंदर नहीं मिलते हैं, जिनकी मिसालें दूसरे महीनों के अंदर मौजूद नहीं हैं। जिनमें से सबसे बड़ा वाक़या कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलीम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी मईयत में बनी इसराइल को मिस्र के ज़ालिम हुक्मरान, ज़ालिम बादशाह फ़िरऔन से और फ़िरऔन की ज़ालिम फ़ौज से नजात अता फरमाई। उसके अलावा बाज़ तारीख़ी किताबों में कुछ और वाक़यात मिलते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इसी महीने में रूनमा हुए, इसी महीने में पेश आए। मेरे दोस्तों, लेकिन उनको बताना, उनको जो है आप हज़रात के सामने पेश करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुफ्तियान निज़ाम ये भी फरमाते हैं कि उन वाक़यात की कोई बुनियाद जो है अब तक नहीं मिली है और ना मिलती है। तो मेरे दोस्तों, ये बड़ा वाक़या है जो रिवायत से जो है साबित है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो वाक़यात भी इस महीने के अंदर पेश आए हैं तो इसका इल्म अल्लाह के पास है, तो इस महीने की फजीलत और इसका एहतराम मज़ीद बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये जो महीना है मुहर्रमुल हराम का महीना, इस महीने में इंसान को चाहिए, इस महीने का तकाज़ा ये है कि हर तरह के बुरे काम से बचते हुए, हर तरह के गुनाह से, अल्लाह के नाफरमानी से बचते हुए अच्छे काम करने की कोशिश की जाए, बुरे कामों से दूर रह कर के ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की जाए, हर तरह के अच्छे अमल को किया जाए। और अगर देखा जाए पूरा साल अल्लाह का है, हर एक महीना, हर एक दिन अल्लाह का है, पूरे साल ही इंसान को अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कामों से बचना चाहिए। लेकिन इन 4 महीनों में गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, बुरे काम करना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। और इस महीने की अगर ख़ास इबादत की बात की जाए तो मेरे दोस्तों, इस महीने की ख़ास इबादत जो है वो रोज़ा है, जो इस रिवायत से मालूम होता है कि तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है जिसके रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक शख्स आया और आकर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के अलावा अगर मैं किसी और दिन का रोज़ा रखना चाहूँ तो आप मुझे किस दिन का रोज़ा रखने का हुक्म फरमाते हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रमज़ान के अलावा अगर तुम किसी और दिन का रोज़ा रखना चाहो तो मुहर्रम का रोज़ा रखो, क्योंकि मुहर्रम का महीना ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस महीने का एक दिन ऐसा है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा को कबूल फरमाया और आइंदा भी एक कौम की तौबा को कबूल फरमाया। और इस महीने के रोज़ों की जो फजीलत है वो इस हदीस से भी साफ़ तौर पर वाज़ेह हो जाती है। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में साफ़ तौर पर फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़ा वो मुहर्रम का रोज़ा है। और आगे इसी हदीस के टुकड़े में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज जो है वो आधी रात के वक्त पढ़ी जाने वाली नमाज है, यानी वो तहज्जुद की नमाज है। तो मेरे दोस्तों, इस महीने की ख़ास इबादत वो रोज़ा रखना है। वैसे तो पूरे महीना रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए इस महीने की 10 तारीख के रोज़े के बारे में तो उस 10 तारीख के रोज़े की फ़जीलत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बेशुमार रिवायतें उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा
तो अल्लाह तबारक व तआला उस रोज़े के बदले में उसके 1 साल के पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और मुहर्रम की 10 तारीख को यौम आशूरा, आशूरा का दिन कहा जाता है। और इस रोज़े के बारे में आता है मेरे दोस्तों कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले मुहर्रम की 10 तारीख का यानी यौम आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए तो ये इस रोज़े की फ़र्ज़ियत जो है वो मनसूख हो गई, ख़त्म हो गई, फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के रोज़ों से पहले सहाबा इकराम को आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का ताकीदी हुक्म फरमाया करते थे, जिसके बारे में रिवायतें मौजूद हैं। इनमें से एक रिवायत हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह अन्हु की है। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन का रोज़ा रखने का हमें ताकीदी हुक्म किया करते थे और हमें तरगीब देते थे, साथ साथ हमें नसीहतें करते थे। लेकिन जब रमज़ान मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, फ़र्ज़ हो गए, तो अल्लाह के रसूल ने ना तो हमें इस रोज़े को रखने का हुक्म फरमाया और ना ही मना फरमाया और ना ही इस रोज़े के बारे में हमारी ख़बर ली। तो मेरे दोस्तों, मालूम ये हुआ कि रमज़ान के बाद अगर कोई रोज़ा रखना है तो आशूरा का रोज़ा रखना है, जो आशूरा का रोज़ा रमज़ान के रोज़ों से पहले फ़र्ज़ था। और आशूरा के दिन की एक दूसरी फजीलत सुनिए मेरे दोस्तों। दूसरी फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर, अपने बीवी बच्चों पर वुसाअत की, रिस्क में वुसाअत की, तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसके रिस्क में वुसाअत अता फरमाते हैं, बरकत अता फरमाते हैं। यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आशूरा के दिन अपने बीवी बच्चों पर खर्च करेंगे, माल को खर्च करेंगे, खूब अच्छे से अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पूरे साल अल्लाह तबारक व तआला रिस्क में फरावानी फरमाएंगे, वुसाअत फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे, रहमतों का घर के अंदर नुज़ूल हो जाए। और उसकी मिसाल जो है हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, जो फरमाते हैं कि जैसे मैंने इस हदीस को सुना, पढ़ा, तो मैंने तजर्बा किया इस बात का कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को पढ़ने के बाद मैंने अपने बीवी बच्चों पर आशूरा के दिन वुसाअत की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे साल मेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाई, वुसाअत अता फरमाई। यानी हज़रत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह जो हैं वो अपना तजर्बा पेश कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, इस महीने की 2 फजीलत, इस महीने की 2 ख़ास जो है इबादत, एक ख़ास इबादत रोज़ा रखना और दूसरे इस महीने के अंदर आशूरा के दिन अपने बच्चों पर, बीवी बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क में जो है वुसाअत करना है। अब जहाँ तक रोज़े की बात आती है मेरे दोस्तों, तो ये रोज़ा सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अहले किताब भी रखते हैं, अब नहीं पहले से ही रखते हैं। तो अगर हम इस रोज़े को रखते हैं, सिर्फ आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं, तो ये यहूद से, अहले किताब से मुशाबहत हो जाती है। क्योंकि एक हदीस के अंदर आता है, एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो देखा खैबर वालों को कि वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने मालूम किया क्या ये दिन कोई ख़ास दिन है, तो फरमाया कि ये दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरऔन की ज़ालिम कौम से, ज़ालिम फ़ौज से और ज़ालिम फ़िरऔन से जो है नजात अता फरमाई थी, जिस पर शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा रखा। तो आज हम भी रोज़ा रखते हैं और उनकी जो है उस खुशी में शरीक होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशी में शरीक होने के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, इसलिए हम भी रोज़ा रखेंगे, ज़्यादा हकदार तो हम हैं। तो मेरे दोस्तों, लिखा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उसके बाद जो है आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे और ख़ुद भी अमल करते थे, सहाबा इकराम को भी बताते थे और सहाबा इकराम भी उस पर अमल किया करते थे। लेकिन यहूद भी आशूरा के दिन का रोज़ा रखते थे, इसलिए कहीं मुशाबहत ना हो जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिर वक्त में फरमाया
कि अगर आइंदा साल में हयात रहा, जिंदा रहा, तो आशूरा के दिन के रोज़े के साथ साथ मैं 9 तारीख का भी रोज़ा रखूँगा। लेकिन अल्लाह का हुक्म देखिए, हुक्म खुदाबंदी देखिए, हुक्म इलाही देखिए कि आने वाले साल से पहले पहले अल्लाह के रसूल जो हैं, मेरे और आपके आका, इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले साल में 10 तारीख के साथ साथ 9 तारीख का रोज़ा रखने का इरादा रखते थे, इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि बेहतर है कि अहले किताब की मुशाबहत से बचने के लिए इंसान को चाहिए कि जो 10 तारीख का रोज़ा रखे, यौम आशूरा का रोज़ा रखे, तो उसके साथ या तो 9 तारीख का रोज़ा मिला ले, अगर 9 का नहीं मिलाया तो 10 के साथ में 11 का रोज़ा मिला ले, ताकि मुशाबहत ख़त्म हो जाए। तो मेरे दोस्तों, फिर बताना चाहता हूँ कि इस महीने की ख़ास इबादत जो है वो रोज़ा है, और आशूरा के दिन के रोज़े की बड़ी फ़जीलत है। अल्लाह तबारक व तआला पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा कर देते हैं। और साथ साथ दूसरी फ़जीलत कि जो भी इंसान अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस महीने का एहतराम करें, इस महीने का अदब करें। और जैसा कि कहा जाता है कि इस महीने के अंदर न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो आज हमारे माशरे के अंदर रिवाज पा चुकी हैं, न जाने कितनी ऐसी बिदआत हैं, रसूमात हैं जो आज जो है हमारे माशरे के अंदर उरूज पर हैं, जिनकी मिसाल ना तो कुरान में है, ना हदीस में है, न कुरान और हदीस से वो साबित हैं, न सहाबा इकराम से वो साबित हैं। और उनके बारे में आता है कि वाक़या करबला के बाद तकरीबन 600 साल के बाद वो जो है बातें शुरू हुई। मेरे दोस्तों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी तमाम बातों से गुरेज किया जाए, बचा जाए, दूर रहा जाए। और ये महीना, इस महीने के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत हुई है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शहादत है, तो इन तमाम हज़रात की शहादत और इनके अलावा जिन सहाबा इकराम की भी इस महीने के अंदर शहादत हुई है, तो उस शहादत पर न जाने कितने हमारे जो हैं अहबाब हैं, न जाने कितने हमारे माशरे के लोग हैं जो इस महीने को दुख का महीना, गम का महीना समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम की तमाम चीज़ें बेबुनियाद हैं, गलत हैं। ये दुख का और गम का महीना नहीं है, बल्कि मुहतरम मुक़द्दस महीना है। और बड़ी बाबरकत हैं वो शख्सियात, जिन शख्सियात की शहादत ऐसे महीने के अंदर हुई जो महीना पहले से ही मुहतरम है और मुक़द्दस है। और साथ साथ न जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस महीने के अंदर तिजारत करने को, कारोबार करने को, शादी ब्याह करने को मनहूस समझते हैं, भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी शादियाँ, कितनी अज़वाज मुताहरात हैं जिनका निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी महीने में, मुहर्रम और सफ़र के महीने में हुआ है। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह के रसूल ने आपसे निकाह फरमाया था। और उसके अलावा हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ। उसके अलावा भी कई एक अज़वाज मुताहरात हैं जिनका निकाह मुहर्रम और सफ़र के महीने में हुआ। तो मेरे दोस्तों, ये कोई मनहूस महीना नहीं है कि इसमें शादी करना मनहूस है और नहूसत है, या उसके अलावा तिजारत करना गलत है। ये सब गलत बातें, इनसे बचा जाए। शादी भी कर सकते हैं, तिजारत भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, बस तमाम किस्म के गुनाहों से बचकर अच्छे काम करते हुए ज़िंदगी गुजारें। और बेशुमार जो बिदआत हैं, ये ताज़िए, ये जो हैं खिचड़ा पकाना, उसके अलावा मुफ्तियान निज़ाम फरमाते हैं कि न जाने कितनी चीज़ें हमारे माशरे में जारी हैं। शरबत पिलाना, काले कपड़े पहनना, अजीब व गरीब गम का माहौल बना के रखना, ये तमाम बातें गलत हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आखिर में ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर सही मालूमात हासिल करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कुरान मजीद ज़रूर पढ़िए और कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़िए। अल्लाह के रसूल की प्यारी बातों को, अहदीस मुबारका को तर्जमे के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली आएगी और एक सही मालूमात आपको हासिल हो जाएगी। और उसके अलावा भी अगर कुछ सही और गलत के बारे में जानने की अगर एक जुस्तजू है, एक कोशिश है, तो अपने उलमा इकराम से, मुफ्तियान निज़ाम से रब्ता करें, उनसे मालूम करें क्या सही है क्या गलत है।
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و مرحمت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا